and Administration. Today we will discuss about the chapter on advanced taxes. So advanced taxes is also a very important chapter. So let me open up this screen. So you'll be able to see this screen on your this presentation on your screen. So the heading of this is provisions relating to payment of advance tax. So remember that you have to follow my cursor on the screen. So liability to pay advance tax. Who has to pay advance tax? So as the name indicates, this tax has to be paid in advance. So for example, once again, I'll just minimize this slide and I'll try to speak to you. See, we all know that the financial year ends on 31st of March. So for example, financial year 1920 ended on 31st of March 2020. After this, every individual, HUF or firm or company has to file their income tax returns. Usually the last date to file the returns every year in India is 31st of July. So now imagine that most of the people file their returns by 31st of July. After that, the income tax department will process those returns. After processing those returns, they will find that yes, people who have filed their taxable returns, they will be paying their taxes. Those returns in which further tax has to be deposited, so income tax department will send them the notice that your tax deposited has been less, so please also deposit some more tax. Now in this process, since the financial year ended on 31st of March, after that when the income tax returns are being processed, so it will be 6 months more when the income tax will be received by the income tax department. And in case if the person does not pay, or if any company do not pay any income tax, then it will be a uphill task for the income tax department to recover the taxes from them. They will file court cases, and court cases may again take another months. So in this process, the income tax will not receive proper taxes. And as we know that income taxes which fall under direct taxes, they are the main source of revenue for the government also. How does the government spend their money? Government also has to run law and order. Government has to, spend money on poor people. Government also has to provide you roads, infrastructure, flyovers. So how will the government receive money? So therefore, government has said, no, we won't wait till the end of the financial year for you to pay your taxes. And it may also happen that people may spend all their money during the financial year. As and when they are earning, they may spend all their money. And in the end, they may not be left with any money to pay their taxes. So therefore, there is a provision of advance taxes. So therefore, people have to pay their taxes quarter by quarter. So in this manner, the income tax will also keep on receiving the money or receiving the revenues, and they will also be able to run their department, and this money will also go to the government. And in the last, if any excess has come to the income tax department, they will refund it to you. Or if there is any shortage, then yes, the income tax assessee will submit it. So that is the background of the advanced taxes. So with this background, let us now go back to our presentation. Is this background clear to you? Or if there is any doubt, or if there is any question, please ask. Okay, so that means, so we presume that there is no question, there is no doubt. So with this background, we come to advanced taxes. What are the rules and regulations? What are the nuances of income advanced taxes? So just watch my cursor. We are saying liability to pay advance tax. As per section 208, every person whose estimated tax liability for the year is rupees 10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax. Okay, so let me explain to you. So as clearly stated over here, any person whose tax liability is above 10,000 rupees in a financial year have to pay his taxes in advance.
If a person's tax liability is below 10,000, then he or she may not be paying the advance tax. Now a question arises over here. You people may ask that how does a person knows that what will be his tax liability at the end of the year? Well, the income tax department expects that the income tax assessee should make up projections of his or her income at the starting of the year, and in between also keep on working on the projections of income. So based on that, the person would be knowing that how much would be my tax at the end of the year, or maybe at the end of the quarter, if already you have earned the income which is much more than the annual income, so you know that your tax has become due, right? So next line in this part, you can gain knowledge on various provisions relating to payment of advance tax by the taxpayer. Now another heading is person not liable to pay advance tax. Who is not liable to pay advance tax? So every person whose estimated tax liability for the year is 10,000 or more is liable to pay advance tax. However, a resident senior citizen, who is a senior citizen? An individual of the age of 60 years or above during the relevant financial year, not having any income from business or profession, is not liable to pay advance tax. So the exceptions are senior citizens who are above 60 years of age, but provided the senior citizen also should not have any income from either business or any profession. In that case, senior citizen is not liable to pay advance tax, but people other than senior citizens or general citizens are liable to pay advance tax. So for example, we are taking this illustration. Watch my cursor. Mr. Kumar is running a provision store. Provision store means a kind of a grocery store. The turnover of the store for the financial year 1920 amounted to 1 crore 84 lakh. He wants to declare income under section 44 AD at 8% of the turnover. He does not have any other source of income. Will he be liable to pay advance tax? Now, what is this section 44 AD, which you are seeing on your screens? This is one section where a person can file his income tax return on presumptive income basis. Presumptive income basis means that an SSE need not prepare any accounts, need not prepare any cash book or ledgers. So just based on the turnover. So it is applicable for which businesses? Those businesses whose turnover do not exceed 2 crore rupees in a financial year. Those businesses can avail of this scheme of presumptive income scheme. Presumptive income scheme. So in this case, what will happen? The government has said that if your turnover is below 2 crores in a financial year, so we will assume that your profits was 8% of the turnover. Right? So this is called presumptive income scheme. So Mr. Kumar, who is running a provision store, he is availing this presumptive income scheme, wherein he will show 8% of the income. So 8% of 1 crore 84 lakh. He doesn't have any other source of income. So does he have to pay the advance tax? What will be the answer? Well, the answer is that Mr. Kumar satisfies the criteria of section 44 AD in respect of provision store business, and hence he can adopt the provisions of section 44 AD and declare income at 8% of the turnover. A taxpayer opting for the presumptive taxation scheme is also liable to pay advance tax in respect of business covered under section 44 AD. Thus, if Mr. Kumar adopts the provision of this section, he is also liable to pay advance tax in respect of income generated from provision store business. So therefore, what we have seen that except senior citizens, everybody is liable to pay the advance tax, even if one is availing the benefit of a presumptive income scheme.
Even in the case of senior citizens, only those senior citizens are exempted from paying advance tax who do not have any income from business or profession. However, if a senior citizen is having any income from business and profession, then he or she will also have to pay the advance tax. Is it clear up till now, my dear students? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good, good, good. Let us take another example. See my cursor illustration. Mr. Vipul, who is of age 39 years, is running a medical store. The turnover of the store for the financial year 1920 amounted to 40 lakh. His accounts revealed a net profit of 2,60,000. Will he be liable to pay advance tax? Now, I want you people to give this answer. His accounts revealed a net profit of 2,60,000. Will he be liable to pay advance tax? Yes or no? And if yes, why? If no also, then tell me why. Yes, please. What is the problem? Answer yes. Somebody please answer. Sir, he is liable. Liable, sir. Why? He is liable. हाँ why क्योंकि why? 8% बन रही है सर उसकी ये हाँ लेफ्ट पे। नहीं देखिए हमने सबसे सर पहले एक क्या तो वो सीनि- हाँ बताओ बताओ सर एक तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है हाँ ठीक है चलिए और सर उसकी फाइनेंशियल ईयर की 40 लाख इनकम है। इनकम नहीं है वो टर्नओवर है इनकम आ रही है नेट प्रॉफिट इनकम आ रही है 2,60,000 नहीं होंगे सर क्योंकि 8% नहीं मिल रहा। क्योंकि ये देखिए सबसे शुरू का हमारा सेंटेंस था अगर किसी की इनकम 10,000 रुपए से ऊपर किसी का टैक्स सॉरी इनकम नहीं अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर होती है तब उसको एडवांस टैक्स पे करना है इसके ऊपर टैक्स क्या बनेगा 2,60,000 की उसकी टोटल इनकम है 2.5 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्पशन है उसके बाद फिर रिबेट भी मिलता है तो इसकी 10,000 रुपए टैक्स बनेगा ही नहीं तो ही इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स क्योंकि इस टैक्स भी तो बनना चाहिए ना 10,000 रुपए का टैक्स बनना चाहिए इनकम नहीं इसका टैक्स बनेगा ही नहीं ये तो जीरो नील टैक्स में आ जाएगा क्योंकि इसके बाद रिबेट भी मिलता है तो देखो ये लिखा है ना लास्ट में द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर विपुल मेरा कर्सर देखिए इज 2,60,000 टैक्स ऑन 2,60,000 विल बी नील हेंस मिस्टर विपुल इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स क्योंकि ये आपको देखिए दोबारा दिखा रहा हूं मैं ये है ना हमारे यहाँ नील इनकम अप टू नील टैक्स अप टू इनकम ऑफ 2.5 लाख 2,50,000 ये 1920 का फाइनेंशियल ईयर का है 1819 में भी यही था 5% above 2.5 lakh but up to 5 lakh and 20% for income above 5 lakh and up to 10 lakh and 30% for income above 10 lakh and however in the case of taxpayer being an individual resident in India rebate under section 87A of 12,500 or 100% of tax whichever is lower would be provided if his total income does not exceed 5 lakh अगर किसी की इनकम इस 1920 में 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है तो उसका जो भी टैक्स बनेगा 100% टैक्स बनेगा वो उसका रिफंड हो जाएगा रिबेट मिल जाएगी या मैक्सिमम 12,500 तक 5,000 पे टैक्स 12,500 आता है क्योंकि 2.5 लाख पे तो जीरो है 5% अगले 2.5 लाख पे है तो ये 12,500 बन गया तो 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 उसको डिस्काउंट या रिबेट मिल जाएगा इसके ऊपर फिर 4% सेस लगता है तो जब जीरो आ गया 2,60,000 पे तो सेस लगेगा ही नहीं फिर तो ठीक है अब हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स कब कब पे करना होता है ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या आप देखिए एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स आर एज फॉलोज स्टेटस सबसे पहले ऑल एसएससीज अदर देन द एलिजिबल एसएससीज एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 एडी और ये सेक्शन क्या है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम एक गवर्नमेंट ने चालू की थी कुछ साल पहले जिसके अंदर जो पहले क्या होता था कि जो बिजनेसमैन होते थे वो टैक्स फाइल रिटर्न करते नहीं थे छोटा बिजनेसमैन है
वो भी सारे अकाउंट्स रखेगा, सारी लेजर बनाएगा, तो वो उस चक्कर में वो भरता ही नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि देखो अगर आपकी टर्नओवर, देखो 2 करोड़ भी बहुत होती है टर्नओवर, उन्होंने कहा 2 करोड़ अगर आपकी सेल्स है एक साल में, वो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में भर सकते हैं। उनको सिर्फ 8% जितना उनका सेल्स हुई है उसका 8% प्रॉफिट देते हैं। उसमें हम ये मान लेंगे कि जितने भी आपके खर्चे हो गए वो सब आपने पूरे कर लिए, उसके अलावा और कोई खर्चे नहीं होंगे। तो खैर अदर देन, तो इस सेक्शन में वो आते हैं। तो ऑल एसएससी सिर्फ उनको छोड़ करके 15 जून तक उनको मिनिमम 15% ऑफ द एडवांस टैक्स भरना है। मतलब जितना उनका टैक्स बन रहा है 15 जून तक ही सब लोग बन रहा है, तो या टोटल सॉरी जितना उनका टोटल साल में उनकी प्रोजेक्शन है कि हमारा इनकम होगी, उसका 15% टैक्स जमा करा दें, एडवांस टैक्स मिनिमम। 15 सितंबर तक 45% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एडवांस टैक्स। 15 दिसंबर तक मिनिमम 75%, मिनिमम है, ज्यादा भी आप करा सकते हो, इससे ज्यादा भी। एंड बाय 15 मार्च 100% ऑफ द एडवांस टैक्स। सो फॉर एग्जांपल द न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, तो अप्रैल मई जून, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में ही पूरा भी नहीं होने देना आपने, यानी 2.5 महीने के बाद आपने जमा कराना है। फिर अगला क्वार्टर आपका स्टार्ट हुआ जुलाई से, अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर हो गया, अगला क्वार्टर आपका शुरू हुआ जुलाई से। सो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर मई अगले क्वार्टर के 2.5 महीने में 22 के अंदर अंदर। फिर अगला क्वार्टर आपका हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी 2.5 महीने के अंदर। अगला क्वार्टर हुआ फिर लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, तो 2.5 महीने के अंदर ये आपको जमा करा देना है। जो लोग, ये जो अब नेक्स्ट आया है, जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में अप्लाई करते हैं उनको कुछ नहीं जमा कराना है पहले 3 क्वार्टर में, उनको बस लास्ट में जमा कराना है। 15 मार्च तक मिनिमम 100% ऑफ द एडवांस टैक्स उनको जमा करा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। For people who are opting the presumptive income scheme, they have to deposit advance tax just in the last, that is before the end of financial year by 15th of March. Anyway, they have also written that note 1, any date paid till 31st of March will be treated as advance tax. That means before the end of the financial year, whatever you deposit, it will be treated as advance tax only. Note 2, if the last day for the payment of any installment of advance tax is a day on which the banks are closed, then the taxpayer should pay the advance tax on the immediately following working day. ये तो देखिए नॉर्मल हर जगह होता है कि अगर आप लास्ट डेट पे कोई छुट्टी पड़ गई तो नेक्स्ट डे ही उसका माना जाता है, तो लेट नहीं माना जाता। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। Mr. Kumar is a doctor. Although Mr. Kumar is in a profession specified under Section 44AA1, but doesn't opt for the presumptive taxation scheme. ये presumptive taxation scheme को इन्होंने opt नहीं किया है. But his estimated tax liability for the financial year 1920 amounted to 1 lakh rupees. By what dates he should pay advance tax and how much? अब क्योंकि 10,000 से ऊपर इनका टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और 1 लाख रुपया इनकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, तो कौन कौन सी डेट तक इनको कितना कितना पे करना है? तो हमने देखा था कि 15 जून तक 15% देना पड़ता है, ये देखा ना हमने। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%। तो इनको कितना देना पड़ेगा? 15 जून तक 1 लाख है, तो 15 जून तक इनको 15,000 रुपए देने हैं। Okay, his first installment of advance tax will fall on 15 June. So he should pay 15% of his tax liability in advance. Hence, he should pay 15,000 on account of advance tax by 15 June. Second installment 15 September को ड्यू होती है, उसमें 45% तक आ जाना चाहिए। तो 1 लाख का 45,000 कितना हो गया? 45% हो गया 45,000। बट क्योंकि वो 15,000 पहले दे चुके हैं, तो 45,000 माइनस 15,000 30,000 रुपीज जमा करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये नहीं है कि फिर दोबारा 45,000 जमा करेंगे।
टोटल 45,000 आ जाना चाहिए। अगर किसी वजह से पहला क्वार्टर मिस हो गया तो 45,000 ही जमा कराते हैं, लेकिन पहले क्वार्टर में ही हैज ऑलरेडी पेड 15,000, तो 45,000 माइनस 15,000, 30,000 ही विल डिपॉजिट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, सी माय कर्सर, it's due on 15 September 2019. So by this time he should pay 75% of his liability, which is 75,000. So already he has paid 45,000 till the first 2 quarters. So 75,000 minus 45,000, he has to pay 30,000 now on 15th December. Next, advance payment is due on 15th March. So by that he should pay 100%, which is 1 lakh. So since he has already paid 75,000, so 1 lakh minus 75,000, he will pay 25,000 by 15th March 2020. So this is how this advance tax has to be paid. So now in this case, the government will keep on receiving money regularly throughout the year from, crores of people are there in the country. So if they wait till the end of the year and then also the returns will be processed, it will be too late for the government to get this money. So is this point clear to you or not? So now we come to mode of payment of income tax. How do we have to pay? Okay, good. As per Rule 125 of the Income Tax Rules 1962, a corporate taxpayer, that is a company, shall pay taxes through the electronic payment mode using the internet banking facility of the authorized bank. तो ऑनलाइन उसको पे करना होगा एडवांस टैक्स, उसे किसी ऑफिस में नहीं जाना, वो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा फंड्स को. Taxpayers other than a company who are required to get their accounts audited shall pay taxes through the electronic payment mode using the internet banking facility of the authorized bank. Any other taxpayer can pay tax either by electronic mode or by physical mode, that is by depositing the challan at the receiving bank. तो कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से ही करेंगे. कॉर्पोरेट टैक्स पेयर लिखा है ना ऊपर, और कंपनी तो उसी की तरह पे करेंगे. बट जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसके लिए ऑप्शन है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दे या फिजिकली मोड से बैंक में जाके चालान होता है, चालान वो सबमिट कर दे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के नाम पे. ठीक है, इज इट क्लियर? Next, we talk about payment of advance tax. Right? You read the sentences just in the meanwhile. So next we are saying payment of advance tax. Advance tax can be paid by the taxpayer either on his own account or on pursuance of an order of the assessing officer. या तो वो एडवांस टैक्स खुद टैक्स पेयर अपने आप से दे सकता है, ऑन हिज ओन अकाउंट मींस अपने आप से पे कर दे, या हो सकता है उसको असेसिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आया हो. Then it is written that the taxpayer who is liable to pay advance tax is required to estimate his current income and pay advance tax on his own account. In such a case, he is not required to submit any estimate or statement of income to the tax authority. तो उसको खुद ही अपनी इनकम एस्टिमेट करनी है पूरे साल की और अपने आप टैक्स जमा कर देना है. आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट or second or third installment of advance tax, if there is a change in the tax liability, then the taxpayer can revise the quantum of advance tax in the remaining installment and pay the tax as per the revised estimate. Suppose taxpayer ने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी एडवांस टैक्स की, लास्ट में उसको लगा, जैसे कि मान लीजिए बिजनेसमैन है, उसको लगा यार मेरी तो इतनी सेल्स है नहीं, तो अब तो ओवरऑल टैक्स की लायबिलिटी मैंने ज्यादा लगाई थी, तो अब तो मेरा उतना टैक्स बनेगा नहीं. अब जैसे यही साल ले लीजिए आप, मार्च एक तरह से बंद ही रहा लोगों के लिए, तो मार्च में तो कोई सेल ही नहीं हुई लोगों की, तो जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था वो सारा गड़बड़ा जाएगा. तो उसके हिसाब से वो रिवाइज कर सकता है अपने एस्टिमेट को और उस हिसाब से वो कम टैक्स पे कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी पे कर सकता है, ऐसा केस में भी. तो देखिए लिखा है इसमें फिर, टैक्स कैन बी कंप्यूटेड ऑन द करंट इनकम at the rates in force during the financial year. From the tax so computed, tax deducted or collected at source will be deducted and the balance tax payable will be used to compute the advance tax liability.
फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Mr. Rana is an engineer. Although Mr. Rana is in profession specified under section so and so, but he doesn't opt for the presumptive taxation scheme of section 44 ADA. His estimated tax liability for the year amounts to 2 lakh. 2 लाख की इनकी टैक्स बनता है साल का. He has paid advance tax of 30,000 by 15 June. In the month of August, he got a contract from a multinational company. After incorporating the receipts of the new contract, his revised tax liability for the year amounts to rupees 3 lakh. अब इसको 15 एक इसने इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. उसके बाद इसने कहा कि ये नए कॉन्ट्रैक्ट से जो मेरे जो पेमेंट आएगा, तो अब मेरी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख की बजाय 3 लाख हो सकती है मेरी टैक्स की लायबिलिटी. सो इन दिस केस हाउ मच एडवांस टैक्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे इन ईच इंस्टॉलमेंट. तो इसमें क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो बनती है इसकी 10,000 से ऊपर इसकी टैक्स बन रहा है, तो 15 जून तक इसको क्या पे करना है? 15%. 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%. अब इसने क्या किया है? इसने कितना पे किया है? इसने 30,000 पे किया था 2 लाख के ऊपर 15%. तो 15 सितंबर को क्या पे करेगा अभी? तो ये देखिए यहां पर सी में माई कर्सर, हिज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी विदाउट टीडीएस अमाउंटेड टू 1 lakh. In the month of August, he received 1,80,000. आफ्टर ये तो चलिए थोड़ा सा और इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड नीचे से बना दिया इसका, ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. ओके देखिए बेसिकली इसके अंदर लिखा है he has to pay 15% of his estimated tax liability by 15 June. Hence, he has to pay 50,000 on account of advance tax by 15 June. While computing the advance tax liability, the taxpayer can deduct the tax at source from his income. In this case, at the time of estimation of first installment, there was no TDS credit with Mr. Raja. His estimated tax liability amounted to 1 lakh. अगस्त में उसको 1,80,000 मिले. Hence, he got a TDS क्रेडिट ऑफ 20,000. बेसिकली अगर आपका कहीं टीडीएस कटा है, लास्ट टाइम हमने टीडीएस पढ़ा था ना, अगर इसमें इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका ऑलरेडी टीडीएस कटा है तो वो आप काट लेंगे एडवांस टैक्स में, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी टैक्स जमा कोई और कर रहा है आपके बिहाफ पर, जहां से आपको पैसा मिल रहा है. तो इसको 2 लाख मिलना था, उसमें 1,80,000 मिला, तो 20,000 उसका टीडीएस में कट गया, तो ये टीडीएस काट के बाकी जमा कराएगा. तो एनीवे हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं. तो बेसिकली आपको टीडीएस काट के जमा कराना है, राइट? लेट अस सी द नेक्स्ट. पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर. इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू पे एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड इज लोअर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, या तो उसने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया या कम जमा कराया जितना उसे जमा कराना चाहिए था, एंड ही हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, देन द असेसिंग ऑफिसर may pass an order under section so and so requiring him to pay advance tax on his current year's income. Such an order may be passed during the financial year but not later than the last day of February. तो अगर किसी ने अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया या कम जमा कराया है, तो उसको 28 फरवरी तक, लास्ट डे ऑफ फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी होगा, तो उसमें उसके पास नोटिस आ जाएगा उसको असेसिंग ऑफिसर का इनकम टैक्स से कि भाई आपका एडवांस टैक्स कम जमा हुआ है या जमा नहीं हुआ है. तो उसके बाद क्या होगा? ऑन रिसीप्ट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर टू पे एडवांस टैक्स, इफ द टैक्स पेयर्स estimate is lower than the estimate of the assessing officer, then the taxpayer can submit his own estimate of current income or advance tax and pay tax accordingly. In such a case, he has to send intimation in form number 28A to the assessing officer. Assessing officer ने let's say भेजा है कि भाई आपका टैक्स जो है वो 2 लाख रुपया बनता है और आपने अभी तक जमा नहीं कराया या आपने कम जमा कराया है, और
जो एसएससी है उसको लगा नहीं नहीं 2 लाख नहीं है, मेरा तो इस बार सेल ही नहीं हुई है, मेरा तो टैक्स जो है सिर्फ 1 लाख ही बन रहा है, तो वो फिर कम टैक्स जमा करा के एक फॉर्म भर देगा, फॉर्म 28A भर देगा, उसमें बताएगा कि भाई मेरी इतनी इनकम नहीं है असेसिंग ऑफिसर को। सॉरी, ऑल्टरनेटिवली, if the advance tax on the current income as per own estimate of the taxpayer is likely to be higher than the amount estimated by the assessing officer, the taxpayer will pay such higher amount as advance tax in accordance with his own calculation. In such a case, no intimation to the assessing officer is required. अब दूसरा केस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, असेसिंग ऑफिसर ने आपको भेजा है कि भाई आपका टैक्स 2 लाख रुपया बनता है, आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, आप जमा करा दीजिए। असेसी को ने कहा कि नहीं भाई मेरा तो एडवांस टैक्स और ज्यादा बनता है, 2 लाख नहीं है, इस बार सेल ज्यादा हुई है, मेरा टैक्स 2.5 लाख बनता है, तो वो जमा करा देगा ज्यादा के हिसाब से। उसमें उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है जो ऊपर भरा था, ऊपर जब कम था उसका तब उसको ये फॉर्म भरने की जरूरत थी और इंटीमेशन सेंड करने की जरूरत थी कि भाई हमारा टैक्स कम बना है। अगर टैक्स आपका ज्यादा बना है तो इसमें इनकम टैक्स वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अच्छा है, उन्हें तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट हम रूल एक और है, द असेसिंग ऑफिसर कैन रिवाइज हिज ऑर्डर इशू टू द टैक्स पेयर टू पे एडवांस टैक्स। Such revision can be done if subsequent to the passing of an order to pay advance tax, but before 1st March of the relevant financial year, a return of the income in respect of any later year has been furnished by the taxpayer on any assessment for any later year has been completed at a higher figure. On receipt of such order, the procedure to be followed by the taxpayer will be the same as discussed earlier. देखिए, इवन असेसिंग ऑफिसर भी अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसको जहां से भी वो डेटा मिलता है, तो वो भी अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर सकता है और उसके बाद वो उस हिसाब से नोटिस आप उसको एसएससी को भेज देगा। अब एक देखिए एग्जांपल है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय मिस्टर कपूर हु इज एज is 35 years from the following details provided by him for the financial year 1920. Taxable business income हुई है 10,84,000. Interest on debentures is 9,000. इसमें इनका TDS भी कटा है 1,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट इन NSC इन्होंने किया है 80,000 और ट्यूशन फीस पे की है फॉर हिज सन 1333 रुपीज। सो हाउ डू वी कैलकुलेट, इसमें आप कैसे बनाएंगे? Sorry. So particulars, profit and gains of business and profession, you will write 10,84,000. So this is a taxable business income. Income from other source, debenture interest will come under income from other source is 10,000, although he has got 9,000 only and his TDS has been deducted as 1,000. Anyway, so for TDS we will calculate afterwards. So his total income is this plus this is 10,94,000. Less deduction under section 80C. NSC and tuition fees comes under 80C. So he has invested how much? See in the question. He has invested 80,000 in NSC and 1333. So कितना हो गया? 81,333 ये इसमें से लेस हो जाएगा। तो टैक्स, तो नेट इनकम आ गई इसमें 10,12,667। इसका आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, सो टैक्स आएगा 1,16,300। सो लेस रिबेट मिलती है 5 लाख तक की इनकम वालों को, तो 12,500 की वो इसको नहीं मिलेगी रिबेट, क्योंकि इसकी इनकम इज मोर देन 5 लाख, सो रिबेट इज नील। सो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट also remains 1,16,300. So you add health and education cess at the rate of 4%. So tax liability before TDS becomes, tax liability कितनी बन गई? 1,20,952. So already TDS, यहाँ देखिए TDS उसका कटा था डिबेंचर में, ये इधर सी माई कर्सर 10,000 था उसका इंटरेस्ट, 9,000 मिला उसको, TDS 1,000, तो इतना टैक्स बना है 1,20,952। इसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेगा 1,000, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई उसकी? 1,19,952।
अब अगर उसने साल के शुरू में थोड़ा सा आइडिया लग गया उसको, तो वो एडवांस टैक्स अपना उस हिसाब से जमा करा देगा। तो 1,19,952 का 15% जमा कराना चाहिए उसको 15 जून तक, जो कि हो जाएगा 17,993। फिर 1,19,952 का 45% ही शुड डिपॉजिट बाई 15 September, which comes out to be this figure 53,978, but already he has given this 17,993, तो ये इसमें से लेस हो जाएगा 53,978 में से, तो his net liability will come out to 35,985। सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट उसकी जानी है 15 दिसंबर को, 75,000 तक चली जानी चाहिए। तो 75,000 1,19,952 का बनता है 89,963, क्योंकि ऑलरेडी वो 53,978 दे चुका है, तो इसके अंदर से 89,963 में से रिड्यूस करिए 53,978, बैलेंस इज 35,985, so this he will deposit. And finally by 15th of March his liability is 100%, that is he should have deposited his whole 1,19,952. Since he has already deposited 75%, which is 89,963, which will be deducted from his total amount, so net is 29,988 he will deposit by 15th of March. So this is how the advance tax is calculated. Now let us do some questions. अभी अभी हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे, हालांकि आपको शायद एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे सेक्शंस, बट स्टिल थोड़ा सा एज पर सेक्शन, कौन से सेक्शन में था दैट एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर शुड पे हिज टैक्स इन एडवांस। 2008 ओ 208 सॉरी बी 208 208 गुड बी। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स। ए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, that is an individual of the age of 60 years and above, not having any income from business or profession, is not liable to pay advance tax. True or false? ट्रू ए true True, yes, good. True. Question number B. All taxpayers other than eligible, other than मतलब presumptive income वालों को छोड़ के, all taxpayers are required to pay up to 45% of the advance tax by what date? 15 June, 30 June, 15 June 45%। पहला नए फाइनेंशियल ईयर से देखिए ना, पहले 2.5 महीने में 15% जाना चाहिए, वो 15 जून तक होता है। अगला 2.5 महीना कब आएगा? सितंबर में आएगा। तो आंसर क्या होगा? 45% का 15 सितंबर होना चाहिए। पहला 15% 15 जून तक। देखो अप्रैल में शुरू होता है ना, ऐसे लगा लो अप्रैल मई जून, यानी 2.5 महीने में 15 जून तक 15%। अगला क्वार्टर शुरू हुआ जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2.5 महीने कब हुए पूरे? 15 सितंबर तक को। तो सेकंड तक चला जाना चाहिए 45%। तो ये हो गया, आंसर आना चाहिए सी 45%। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। फोर्थ, taxpayers opting for presumptive taxation scheme of section 44 AD are required to pay up to what percentage of advance tax by 15 June? B. हाँ, B. आंसर 45%. और कोई? मैंने अभी आपको समझाया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, कि इसके अंदर आपको कोई अकाउंट्स खाते नहीं बनाने होते हैं। इसके अंदर प्रिजम्पशन कर लिया जाता है, भाई ये आपकी इनकम 8% से मान लेंगे हम, आपका जितना सेल्स हुई है, अगर आपकी सेल्स जो है 1 करोड़ हुई है, तो 1 करोड़ का 8% 8 लाख मान लिया, 8 लाख आपकी इनकम मान ली, सीधी सी बात है। अगर किसी की इनकम जो है 50 लाख, सॉरी टोटल सेल्स 50 लाख की हुई है, तो 50 लाख में 8% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मान लिया जाएगा, सब खर्चे वर्चे काट के। तो 50 लाख का 8% हो गया 4 लाख रुपया उसकी इनकम मान ली जाएगी। ऐसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हमने बोला था कि इन लोगों को एक फैसिलिटी दी गई है कि सिर्फ लास्ट में 15 मार्च को ही इन्हें पूरा एडवांस टैक्स अपना जमा करा देना है 100%, उससे पहले कुछ नहीं जमा कराना। तो 15 जून तक का आंसर क्या होगा फिर?
अब मैंने आपको सारा आंसर तो बता ही दिया है। अरे आई हैव टोल्ड यू ऑल द आंसर्स यार। सो आंसर विल बी नील, नहीं डी नील। नील, अच्छा। नील। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, समझे आप, आपको अलग से भी बता दूंगा ये, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है प्रिज्यूम कर लिया। अगर आप, मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूं, छोटा दुकानदार हूं, मेरी सेल 10 लाख की होती है साल की, तो 10 लाख की सेल के लिए मैं खाते वाते बनाऊंगा, अकाउंटेंट रखूंगा और मेरा खर्चा बढ़ेगा, और मैं भरता ही नहीं था, तो कम से कम कुछ तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो मैं प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में 10 लाख का अपना दिखा देता हूँ, मेरी इतनी सेल हुई है। 10 लाख का 8% कितना हो गया? 10 लाख का 8% कितना होगा? 80,000 रुपया। यस सर। 80,000। 80,000 ना, तो 80,000 जो है वो मेरी इनकम मान ली जाएगी साल की। तो वो वैसे भी मैं टैक्स के नीचे आ गया, तो मेरे को, तो बहरहाल जो भी उनका टैक्स, अगर टैक्स में बनता है 10,000 टैक्स बनता है, तभी वो एडवांस टैक्स के लिए जमा कराएगा। लेकिन इनके लिए क्या है कि लास्ट में ही इनको एडवांस टैक्स जमा कराना है 15 मार्च तक। तो आंसर विल बी डी नील। Taxpayer who are opting for presumptive taxation scheme of section so and so are required to pay 100% of advance tax by 15th March. Now, this question number 5. Taxpayers other than a company who are required to get their accounts audited have to pay tax by physical mode, that is by depositing the challan at the receiving bank. फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट, फॉल्स। क्योंकि इनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं ना, तो अकाउंट अगर किसी के ऑडिट होने हैं, तो अगर भले ही कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब यह उसकी 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगी, अगर अकाउंट ऑडिट नहीं होने, तो वो फिर ऑनलाइन ही सबमिट करेगा, वो फिजिकल मोड से नहीं कर सकता। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये सेक्शन। एक क्वेश्चन था, चलिए आपने देख लिया है कि द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन सो एंड सो रिक्वायरिंग द टैक्स पेयर टू पे एडवांस टैक्स ऑन हिज करंट ईयर्स इनकम में बी पास ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन। अगर असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस भेज रहा है एडवांस टैक्स का, तो उसे कब तक भेज देना चाहिए? इसका आंसर है लास्ट डे ऑफ फरवरी। 28 फरवरी तक उसको अपना नोटिस भेज देना चाहिए, भाई आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा और पार्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, ये हम अभी यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। सो लेट मी ऑल्सो इसका थोड़ा और डिटेल और पढ़ते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स टू सीनियर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ये भी हमने पढ़ा ही था। ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा है कि भाई अगर किसी की इनकम 10,000 से ऊपर होती है तो ही हैज टू पे एडवांस टैक्स। लेकिन एग्जेम्पशन किसके लिए है? सीनियर सिटीजन। हाँ, ही इज एन इंडिविजुअल, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट ही इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, और उसकी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर कोई मिस्टर कपूर है, कितनी भी इनकम है उनकी, 65 ईयर्स के हैं, रिटायर्ड पर्सन है, उनको रेंट मिल रहा है 40,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 12 4 जा 48, 4,80,000 हो गई उनकी इनकम। टैक्सेबल तो बनती है, लेकिन उनके ऊपर उनको एडवांस टैक्स सोचना नहीं, अब कितना बनेगा, 10,000 बनेगा नहीं बनेगा, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसी तरह कोई एक मिस्टर सुनील है, उनकी एज है 56 ईयर, तो ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं, रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड से मतलब नहीं है रिटायर हो गए नहीं हो गए, इनकम टैक्स ने एज के हिसाब से दिया है। 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स नहीं है तो रेंटल इनकम है इनकी, और कोई इनकम नहीं है, 40,000 यानी कि 4,80,000 हो गई।
तो अगर टैक्स में आते हैं तो देंगे ये टैक्स, एडवांस टैक्स पे करेंगे, लेकिन वो वही देखना पड़ेगा 10,000 से ऊपर टैक्स बनता है तब पे करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक और एग्जाम्पल है, एक मिस्टर मोहन है, इनकी एज 61 ईयर्स है, इनकी एक तो रेंटल इनकम है 40,000 और फिर इन्होंने कोई अपना बिजनेस से एक प्रोविजन स्टोर भी खोल लिया है। तो क्या एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे ये? यस होंगे, क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस खोल लिया। तो इनके लिए अब एग्जाम्पशन नहीं है, भले ये सीनियर सिटीजन है। तो अगर सीनियर सिटीजन कोई कहीं पे जॉब कर रहा है या कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है एज ए एडवोकेट या कहीं पे टीचर लगा हुआ है, तो उसके लिए फिर एडवांस टैक्स की एग्जाम्पशन लागू नहीं होगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ उनके लिए एग्जाम्पशन दिया, भाई सीनियर सिटीजन हो गए, सिर्फ रिटायरमेंट की इनकम आ रही है या इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, सिर्फ उनके लिए छूट है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, ये मिस्टर राजा है, नॉन रेसिडेंट है, एज 63 ईयर्स है, इनकी भी रेंटल इनकम आ रही है। तो अभी कनाडा में रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो क्या इनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये इंडिया से ही कमा रहे हैं, इंडिया में इनकी प्रॉपर्टी है, तो यस इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए है, नॉन रेसिडेंट है, लिखा है ना ये, द एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज अवेलेबल टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव and who does not have income chargeable to tax under the head profits and gains of business or profession. In this case, Mr. Raja is a non-resident as per income tax law, and hence he cannot claim the benefit of exemption from payment of advance tax. In other words, Mr. Raja will be liable to pay advance tax. Similarly, कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके लिए भी कोई एग्जाम्पशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। चलिए अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 207, अच्छा वो जो आता है 208 में था, जो सीनियर सिटीजन्स का जो क्लॉज है उसके लिए एक सेक्शन है 207, हु डैश नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ए बी सी एंड डी में से क्या आंसर होगा? सिंपल है अभी, what will be the answer? Are you seeing this on your screen? D sir. D, resident senior citizen is not having income from a business and profession is not liable to pay advance tax. Yes. True and false. As per section 207, a resident individual who is of the age of below 60 years, not having any income from business and profession is not liable to pay advance tax. True or false? Age of below 60 years. Age of below 60 years is not liable to pay advance tax. हाँ बताओ भाई, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स, हाँ क्यों है फॉल्स? फॉल्स है सर। फॉल्स है क्योंकि 60 ईयर से नीचे है, लेकिन हाँ फॉल्स है कि भले ही उसकी इनकम बिजनेस है, प्रोफेशन से है या नहीं है, किसी भी चीज से है उसकी इनकम, चाहे इंटरेस्ट से है, चाहे वो रिटायर हो गया है 60 साल से पहले ही, 40 साल पे रिटायर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये फॉल्स है, उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। Multiple choice question. As per section 208, every person whose estimated tax liability for the year exceeds so and so shall pay his tax in advance in the form of advance tax. कितनी इनकम? 10,000। कितने टैक्स के ऊपर? 10,000। बी, यस गुड। कहाँ आपका टैक्स 10,000 से ऊपर हुआ, 10,000 या उससे ऊपर, आपको एडवांस टैक्स पे करना है। True and false. Exemption from payment of advance tax under section 207 is also available to a non-resident senior citizen not having income from business and profession. क्या ये exemption non-resident को है, मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया? वो कह रहा है एग्जाम्पशन मिलती है उसको भी, नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को भी मिलती है एग्जाम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स।
बड़ी देर लगती है आपको बताने में भाई, ये तो फटाफट बताया करो क्वेश्चन के आंसर्स। फॉल्स। फॉल्स, हाँ, क्योंकि उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलती है। अगर वो नॉन, सिर्फ रेसिडेंट इंडियन को मिलती है, नॉन रेसिडेंट है, भले ही सीनियर सिटीजन है, भले ही उसकी इनकम और नहीं है बिजनेस प्रोफेशन, तब भी उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उसको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सो हो गया फॉल्स, बिल्कुल ठीक। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5, a resident partnership firm not having income from business or profession can claim exemption from payment of advance tax under section 207। पार्टनरशिप फर्म है, भले ही पार्टनरशिप फर्म किसी, लेट से कोई सोशल वर्क करने के लिए है और उसकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, पार्टनरशिप फर्म की, तो उसको छूट मिल सकती है, ये बोल रहे हैं एडवांस टैक्स से। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, वो भी सीनियर सिटीजन। तो करेक्ट, फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अ रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कैनॉट क्लेम exemption from payment of advance tax under section 207। However, a resident HUF can claim such exemption। True या false? वो कह रहे हैं रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, उसको तो एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, लेकिन HUF को मिल सकती है। फॉल्स। फॉल्स। करेक्ट, फॉल्स। HUF को भी नहीं मिलती है, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन, इसका आंसर यही नजर आ रहा है, बी फॉल्स है। एज पर सेक्शन 207, only a resident senior citizen being a female of the age of 60 years or above not having an income is not liable to pay advance tax। इसमें लिखा सिर्फ फीमेल को एग्जेम्पशन है, ओनली अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन बीइंग अ फीमेल, तो ये फॉल्स है। मेल हो फीमेल हो, उसका कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। सो तो दिस वाज एडवांस टैक्स में इतना ही है, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो दिस इज अबाउट द एडवांस टैक्स। ये तो क्लियर हो गया एडवांस टैक्स का। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सो यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ, तो आई विल सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो यू कैन गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो दिस पार्ट you can do। Any questions so far in advanced tax? So today let me, No, in the meanwhile, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा सा टैक्स रेट एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट आर द टैक्स रेट्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री? टैक्स रेट्स, okay, sir. ओके। अब ये देखो टैक्स रेट्स के लिए, एक तो जनरल जो सिटीजन्स हैं, तो विच आर बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स, उनके लिए क्या है टैक्स रेट? अप टू 2,50,000 इनकम टैक्स रेट इज नील। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नहीं लगेगा, जब टैक्स ही नहीं लगा तो ये भी नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख इज 5% ऑफ टोटल इनकम माइनस 2.5 लाख, क्योंकि पहला 2.5 लाख तो निकाल दिया, तो अगला जो 2.5 लाख है नेक्स्ट 2.5 लाख इज 5%। फिर 5 लाख इनकम अब 5 लाख अप टू 10 लाख इज 20%। तो ऊपर से आएगा 12,500, यहां से आ गया। अगर 2.5 लाख, यहां से 2.5 लाख का 5%, ये आ जाएगा 12,500 प्लस 20% ऑफ इसका जो बैलेंस हो गया। फिर अबव 10 लाख कितना होगा? 30%। ऊपर से आ गया 1,12,000 प्लस 30%। ओवरऑल सबके ऊपर 4% सरचार्ज, वो सॉरी सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक सरचार्ज लगता है। सरचार्ज क्या लगता है, कैसे लगता है, ये याद रखिए। देखिए सरचार्ज, नेचर ऑफ इनकम, अप टू 50 लाख रुपीज
ये एक मिनट, सरचार्ज का है ना ये, एक मिनट, सरचार्ज। बेसिकली 50 लाख तक ये सब आप दो दो बार लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इसमें आ गया। अप टू 50 लाख देर इज नो सरचार्ज। इफ द इनकम इज मोर देन 50 लाख बट अप टू रुपीज 1 करोड़, देन द सरचार्ज इज 10%। मेरे कर्सर को फॉलो करिए। If the income is more than 1 crore in a year but and up to 2 crore, then surcharge is 15%. If income is more than 2 crore up to 5 crore, then also surcharge is 15%. If the income is more than 5 crore up to 10 crore, then also it is 15%। मतलब 1 करोड़ की इनकम के ऊपर सब सारा सरचार्ज 15% ही है। ओके, नाउ फॉर सीनियर सिटीजन्स। हाँ, इसमें एक चीज और थी कि हमने आपको बताया था, ये वाला पैराग्राफ देखिए, ये सबसे ऊपर वाला, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल whose net income does not exceed 5 lakh rupees can also avail rebate under section 87A. It is deductible from income tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of income tax or rupees 12,500 whichever is less. ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था और भी बहुत डिटेल में हमने क्लास में इसके एग्जाम्पल कराए हैं। अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसको एक एडिशनल रिबेट मिलता है 12,500 रुपए तक का। तो इसलिए जो 5 लाख रुपया कमाने वाला है उसकी इनकम टैक्स जो है वो निल हो जाता है। अब जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, 60 years and above, but below the age of 80 years, so these people are known as senior citizens. For them, the first slab rate is up to 3 lakh rupees. Their income tax is nil. So their next slabs, instead of 2.5 lakh, it starts from 3 lakh to 5 lakh is 5%, 5 lakh to 10 lakh is 20%, and above 10 lakh is 30%. So only difference is in the first slab. Instead of 2.5 lakh, it is 3 lakh. Now same, their surcharge is also maximum is 15% after 1 crore of income. So even senior citizen also will get this rebate of 12,500। लिखा ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख तक की है तो उसको भी 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन में भी यही हो गया कि 5 लाख तक की इनकम उसकी टैक्स फ्री हो जाएगी। अब एक और स्लैब रेट है, इट इज फॉर पीपल हु आर ऑफ द एज ऑफ 80 years एंड अबव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो जो 80 एंड 80 से अबव है इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए पहला स्लैब रेट है 5 लाख तक का, तो उनके लिए 5 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। सो निल हो गया, निल नहीं। इनका स्ट्रेट अवे जो है थर्ड स्लैब से शुरू होता है, दैट इज 5 लाख। टैक्स जो है थर्ड स्लैब से शुरू होता है और सीधे 20% लगता है। तो 5% वाला स्लैब इनका निल में आ गया। तो इसमें है 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम हो गई 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर हो गया 30% टैक्स।
So any doubt till now? Okay, so let No, me see sir. what I can dates I should show you. अच्छा, अब हाँ, ये देखिए, अब आप ये आपके दिस इज रेलिवेंट टू योर कोर्स. नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू अ डोमेस्टिक कंपनी. Domestic company means it's an Indian company for the year 1920. For assessment year 1920, this is important, where its total turnover or gross received during the previous year 16-17 does not exceed 250 crores. जो असेसमेंट ईयर अभी 1920 गया है उसके अंदर तो टैक्स रेट था 25%. अब जो नया असेसमेंट ईयर अब जो आया है 2021, इस असेसमेंट ईयर में अगर पहले साल में 250 करोड़ तक के टर्नओवर की जो कंपनीज हैं उनके लिए टैक्स रेट निल कर दिया. और यहां क्या है, वेयर इट्स टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये 16-17 के लिए है, सॉरी. अगर 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर था तो असेसमेंट ईयर 1920 में उसका टैक्स रेट था 25%, और अब 2021 में उसका टैक्स रेट हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल. अगर वेयर इट्स टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो असेसमेंट ईयर 1920 में वो नॉट एप्लीकेबल है, और यहां असेसमेंट ईयर 2021 में ये इस 25% टैक्स लगेगा. अच्छा, ये सेक्शंस हैं, चलो ये आपको फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, ये 115 BA, because you will not be able to understand, so then I will tell you. So what is the meaning of all these things if it has opted for, so any other domestic company, ये एक्चुअली स्पेशल कोई सिचुएशंस है, एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% है, आप ये याद रखेंगे. ऊपर वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो दिस आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई विल हैव टू टेल यू ऑल द बैकग्राउंड ऑफ दिस. So otherwise you can remember that any other domestic company tax rate is 30%. And then there is a surcharge also. In addition to tax at the above rate, surcharge is levied at the rate of 7% on the amount of income tax if net income exceeds 1 crore but does not exceed 10 crores. यानी कि if the अगर बिजनेस की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7% का एक एडिशनल सरचार्ज लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% का सरचार्ज लगेगा, एंड एट द रेट ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इफ नेट इनकम एक्सीड्स 10 crores. So in a case where surcharge is levied, health and education cess of 4% will be levied on the amount of income tax plus surcharge. Now let us see what is the tax rate for a cooperative company. Cooperative societies, sorry. For cooperative society up to rupees 10,000 rupees, the rate of income tax is 10%. If the income is between 10,000 to 20,000, then the tax rate is 20%, and any income above 20,000, the tax rate is 30%. तो देखिए बिल्कुल सीधे हिसाब है. बिजनेसेस के लिए क्या होता है कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए तो आपने पढ़ा है कि स्लैब रेट है कि पहला 2.5 लाख इज नील, नेक्स्ट 2.5 लाख इज 5%, next 5 lakh is 20%, so on. For businesses, domestic companies, there is no such slab rate. Whatever is the income, straight away 30% tax is there. However, for cooperative society, they have given some slab rate, but at a very low scale. Up to 10,000 rupees की कोई भी इनकम है, चाहे वो 1,000 रुपया भी इनकम हुई है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा. 10,000 से 20,000 रुपए तक की इनकम के ऊपर 20% लगेगा, और 20,000 से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स लगेगा.
और उसके ऊपर ऑफ कोर्स 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, और इनके लिए भी सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 12% इफ द नेट इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। बस कंपनी के लिए क्या था, डोमेस्टिक फर्म्स के लिए क्या था कि सरचार्ज वाज एट द रेट ऑफ 7% ऑन एन इनकम अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, एंड फॉर इनकम अबव 10 करोड़ सरचार्ज वाज 12%, या सीधे 12% लगाए फॉर इनकम ओवर 1 करोड़। ओके, so let us see some MCQs over here also. पहले मैं आपको आंसर भी दिखाई देता हूँ। A normal tax rate applicable to a resident individual will depend on age of the individual या gender of the individual. Answer is age of the individual. Gender, पहले gender का भी हुआ करता था एक अलग tax rate, but now it is no more a gender. Now it is just based on the age. Question number 2 says that the basic exemption limit for the assessment year 2021 in the case of resident individual of the age of below 60 years is rupees. What is the basic exemption limit below 60 years of age? Yes, student, tell me. A 2 lakh, B 2.5 lakh, C 3 lakh, and D 5 lakh. Basic exemption limit. 3 lakh. No, wrong. Age is below 60 years. 2.5 lakh. Yes, B. So B is the correct answer. So B. Question number 3. The basic exemption limit for assessment year 2021, ये जो अभी अब शुरू हो गया 2021 assessment year, in case of a resident individual of the age of 60 years and above, but below 80 years is 60 से above and 80 से below, कितनी exemption limit है? Basic exemption limit 3 lakh. 3 lakh. Yes, so the answer is good. C, 3 lakh. Question number 4. Senior, super senior citizen above the age of 80 years, basic exemption limit A, B, C or D? Yes, please. Super senior citizen, what is the basic exemption limit? क्या हो गया, आप लोगों को ऐसे ही बता देना चाहिए without even seeing the option. A is 2 lakh, B is 2.5 lakh, C is 3 lakh, D is 5 lakh. Answer is D, 5 lakh. Sir, 5 lakh. So why you have taken so much of time? No sir, disconnect हो गया था. Oh, अच्छा. बात बोलती है. So question number 5. The basic exemption limit in the case of a non-resident individual, irrespective of his age, is how much? अगर non-resident Indian है, individual है, तो irrespective of age कितना है उसका? Answer is B. उसके लिए 2.5 लाख ही है. वो चाहे सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, उसका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो हम यहाँ के रेसिडेंट इंडियन के जनरल सिटीजन के बराबर है, 2.5 लाख. Then number 6, the basic exemption limit in the case of HUF is rupees how much? HUF को कितनी मिलती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख? इसको भी B 2.5 लाख ही मिलती है. सो आंसर इज B. 2.5. हाँ, 2.5 B. 3 लाख से नहीं, 2.5 लाख. एफ को मिलने के बाद होता है. 2.5. जनरल सिटीजन, नॉन रेसिडेंट सिटीजन और HUF, उनके लिए 2.5 लाख है बेसिक लिमिट.
चलिए सरचार्ज एक्चुअली हटा लिया था सरचार्ज, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ ये वाला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल whose net income does not exceed rupees 5 lakh can avail rebate under section 87A. It is deductible from income tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of income tax or rupees dash whichever is less, A 10,000, B 12,500, C 2,000. हाँ 12,500 12,500 करेक्ट। B 500 हाँ 12,500 की रिबेट मिलती है जिसकी इनकम 5 लाख तक की है। चलिए ये अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया। 9 चलिए ये तो खत्म ही हो गया। सो ओके, so I am minimizing my presentation. Okay, now you can see my video. So if you have any queries, any questions, so please do ask me. And no questions, no queries. Okay. And सर may I leave? बैटरी खत्म हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, okay, you can leave, वंदना। किसकी, तेरी फोन की? Okay, so I am stopping the recording also. Yes, So okay, so we can take your attendance offline. Okay, so I hope you have understood